like to explore more on GSOC, today we have with us very talented and hardworking Preetpal Kaur. She completed a BTech in Computer Science from Guru Nanak Dev College of Engineering, Ludhiana, and she participated in Google Summer of Code for the year 2020. And she has contributed in Haiku organization and mentored in the same organization for this year. Apart from that, she has been consistently participating in Hacktoberfest for the year 2018, 19, and 20. She was also an outreach intern in 2019, and she got nominated for Red Hat Junior. So, like, we'll start with our questions only then. Okay. I think Bhumika, you can stop presenting. So, Pritpal, like this is a 5-day event and we are promoting open source and knowledge about it. And GSOC is like a crucial part of open source. So, can you tell more on Google Summer of Code and is it beginner friendly? Okay. So basically, GSOC is an international annual program, right? The Google will pay you with some stipend. It's up to $3,000 or $1,500 for 3 months if you complete your work on an open source project, right? Which means that there are various open source organization. Are you all get familiar with the open source or not? I mean, a bit. Uh, about what extent did you know? Can you explain it to us? Okay, so this workshop was my first interaction. I mean, I got to know about open source from this workshop only. So whatever we learned in the past 2 days, that's all the knowledge I have about open source. नहीं बेसिक डेफिनेशन क्या होगा ओपन सोर्स का? Okay. So like एक एक कोड है जो कि बाकी सब लोग भी उसको यूज कर सकते हैं. That's how I got it till now. हाँ, ठीक है. So that's the main thing, that the open source means projects are fully distributed on the internet and you can change about your preference, how you want to use that software, use that particular project, right? So there are various uncountable number of free open source organizations that participate in a Google Summer of Code, right? या फिर हिंदी में बताऊं? Like you can also interact with Pritpal in the chat box or you can unmute. तो मैं आपको हिंदी में भी बता देती हूँ क्या होता है कि बहुत सारी, जैसे हमारे पास फायरफॉक्स है, ठीक है, और हमारे पास और भी काफी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि लाइनेक्स हो गया, GNU का प्रोजेक्ट, ये सब ओपन सोर्स है, ठीक है. तो ये क्या करेंगी, ये गूगल के पास जाएंगी कि हमें पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, हमें अपने स्लॉट्स दो, ठीक है. तो आप क्या करोगे, उन ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई करोगे, कंट्रीब्यूशंस करोगे. इफ आप 3 महीने तक उनके प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हो तो आपको वो गूगल जो है वो आपको स्टाइपेंड देगा. तो ये बेसिकली है गूगल समर ऑफ कोड. I hope the picture is clear for all the audience about what exactly is Google Summer of Code and what people do while participating. So basically, we have to contribute in an open source and make our GitHub outstand than others and then participate in Google Summer of Code. No, this is not what is the exact mean. Basically, your selection will depends upon the contribution that you do under the specific organization. Okay, उन्होंने आपका सिर्फ कोडिंग का एक्सपीरियंस जज करना है कि आप हमारे प्रोजेक्ट के लिए फिट हो भी या नहीं हो. तो वो आपको जज कैसे करेंगे, अगर आप उनके प्रोजेक्ट में कोई एक कंट्रीब्यूशन करोगे, वेदर इट्स अ स्मॉल और इट्स अ बिग, लेकिन एक कंट्रीब्यूशन जरूरी है. वो डिपेंड नहीं करता कि आपने पास्ट में कितनी कंपनीज में वर्क किया या आपने पास्ट में कितनी कंट्रीब्यूशंस किए, नथिंग मैटर. उन्होंने सिर्फ देखना है कि आप उनके प्रोजेक्ट में फिट बैठ रहे हो कि नहीं बैठ रहे. I think before we begin, कितने लोगों ने Google Summer of Code की वेबसाइट जाके देखी है? How the website looks like, how many organizations take part? Like, did you all guys had a walkthrough about the website before? Not in depth, but मैं like एक बार देखने गया था कि what is GSOC, but एकदम depth में नहीं गया कि उसमें कौन है क्या क्या. Yeah, I think once.
Okay. And what about rest of the people? Please put it in the chat box. Chat box में डालो या फिर unmute भी करो. Okay. Aditi, you have checked out the website. Is there anyone who haven't not visited the website at all? So, like Preetpal, can you present your screen and give a walkthrough about the website? Then I think they'll understand more about what exactly you're talking. एक्चुअली मैं ना खुद देख रही हूँ, इन्होंने सारा इंटरफेस जो है ना वो चेंज किया हुआ है, पूरा चेंज किया अभी. पूरा चेंज किया हुआ है, मैंने खुद अभी खोली है. ओके सो अंडरस्टैंड बेटर फिर कंट्रीब्यूशंस क्या होते हैं, कैसे करे जाते हैं. हाँ तो नहीं, आप मुझसे लाइक पूछो ना, आप अनम्यूट करके पूछो कि आपको कौन सी चीज, तभी मैं कोई टॉपिक स्टार्ट करूंगी ना. हाँ. People have not visited the website. अभी मैंने लास्ट टाइम विजिट की थी. I'm not sure अभी पूरा इन्होंने चेंज करा है क्या. हाँ सब मैंने भी अभी देखा, सारा का सारा चेंज किया बड़ा है. Okay. जस्ट वेट अ मिनट, चेक करते हैं, कोई बात नहीं, यहीं पे होगा. मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपको? हाँ. Yes, ma'am. ठीक है. तो पहले क्या है, वो पता क्या है, इन्होंने ना GSOC 2022 का सारा अरेंज करना है, ठीक है. तो न्यू ईयर भी बिगिन हो रहा है, तो इसीलिए वो सारा चेंज करते होते हैं, इसीलिए उन्होंने चेंज किया है. तो यहाँ पे तो सिर्फ वही है, आपका मेन काम है गेट स्टार्टेड में, ठीक है. अगर आपको स्टार्ट करनी है, मैं ऑडिबल हूँ, साथ में मुझे रिप्लाई दे जाओ. यस मैम. ओके सो जब हम जाएंगे गेट स्टार्टेड में, ठीक है, तो यहाँ पे है कि जो एप्लीकेशंस हैं वो ओपन होंगी अप्रैल में. जो आपने मतलब बच्चों के लिए जिन्होंने पार्टिसिपेट करना है उनकी एप्लीकेशंस अप्रैल में होंगी. तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसका, ठीक है. तो अगर अभी मेन थिंग ये आती है कि मान लो आपने देखना है कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस पहले पार्टिसिपेट करती थी इसमें, ठीक है. तो वो आप यहाँ से देख सकते हो, ये रहे प्रोजेक्ट्स. हेलो. So Preetpal, हाँ, तो उन ऑर्गेनाइजेशंस पे एक क्वेश्चन है. like everyone saw the website, like at least a glimpse for those who haven't seen it at all. I hope you go and check it out after this session. So like in the website, as you have seen, we have many FEs and SEs right now. So like yesterday only probably that might be their first session on GitHub, and probably many of them might have created the repository also for the first time. So like there are many organizations, and since many people are dabbling right now around open source and GitHub, so can you tell the tips on selecting an organization and how to start with contribution? ओके सो पहले तो मैं आपको ये बताऊं, सबसे पहले तो वेबसाइट पे जाके आप ऑर्गेनाइजेशंस चेक करो कि कौन कौन सी हैं, ठीक है. आपने पहला काम ये करना है कि पहले देखना कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा पुरानी है, ठीक है. तभी आपको पता लगेगा ना, चांस हो गए कि वो हमारी जो है वो इस साल भी ऑर्गेनाइजेशन आएगी, अगर आपने अभी से शुरू करना है, ठीक है. सबसे पहले क्या करना है कि 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस आपने देखनी है, सिर्फ एक नहीं देखनी, आपने 2-3 ऑर्गेनाइजेशन देखनी है जो आपका इंटरेस्ट लेंगी. तो वो आपने ढूंढनी कैसे, कि मान लो आपको C++ के बारे में थोड़ा सा पता है, ठीक है, यहाँ आपको node.js के बारे में पता है, या जावास्क्रिप्ट की कुछ जो स्किल आपको पता है, वो ऑर्गेनाइजेशन अगर आप सर्च करोगे ना GSOC पास्ट ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे एक सर्च का ऑप्शन होगा, ठीक है. पहले मैं बता देती हूँ, फिर मैं करके दिखाऊंगी अगर मुझे मिला तो, ठीक है. तो सर्च का ऑप्शन होगा, उसमें आपने अपना स्किल लिखना है, उसके रिलेटेड सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो स्क्रीन पे विजिबल हो जाएंगी. आपने क्या करना है, उसमें से 2-3 चुननी है, 2-3 सिलेक्ट करनी है, और उसके बाद ना उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है. जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं, कोई एक प्रोजेक्ट या उनका कोई भी
प्रोजेक्ट जैसे फायरफॉक्स ले लो, ठीक है। फायरफॉक्स क्या है, हमने एक ब्राउजर है, हमने उसको ब्राउजर को चला के देखा, तो हमने देखा कि ये क्रोम से बेटर है या नहीं है, ठीक है। तो आपको पता लग गया कि फायरफॉक्स ये काम करता है और इनकी मेन चीज है। तो आपने क्या करना है, जो भी आपने ऑर्गेनाइजेशन लेनी है उसका एक मेन प्रोजेक्ट चला के देखना है अपने लोकल सिस्टम में, ठीक है। अगर वो आपका इंटरेस्ट ले रहा है तभी आपने उसको चूज करना है, नहीं तो उसको ड्रॉप कर दो। क्योंकि अगर आप आगे सिलेक्ट होते हो, ठीक है, तो आपने 3 महीने जो है उसी पे काम करना है। तो अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं उस पर होगा तो आपके लिए बहुत हार्ड हो जाएगा 3 महीने उस पर स्पेंड करना, ठीक है। तो जब आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन मान लो आपने सिलेक्ट कर ली, उनका प्रोजेक्ट भी चला के देख लिया, तब आपने क्या करना है, अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन ने क्या होता है, अपनी सब्सक्रिप्शन मेल जो है वो दी होती है साथ में, प्रोजेक्ट के साथ में। उसको सब्सक्राइब करके आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है उनकी मेलिंग लिस्ट में, कि मान लो मेरा नाम भी आई एम प्रीतपाल कौर, आई एम इंटरेस्टेड इन दैट प्रोजेक्ट, आई हैव डन माय बीटेक इन दैट कॉलेज एंड आई नो these skills and my hobbies are that, okay। तो ये सब चीजें आपने कर दी डिस्क्राइब। तो क्या होगा, कम्युनिटी में से कोई एक बंदा होगा जो आपकी हेल्प करेगा कि आपने फर्स्ट कंट्रीब्यूशन कैसे करनी है, ठीक है। क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का जो कंट्रीब्यूशन का है वो अलग क्राइटेरिया होगा, ठीक है। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं हाइकू में हुई थी, मैंने जब इंट्रोडक्शन भेजी तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे सिंपल बग्स जो थे इजी वाले वो सॉल्व करने को कह दिए कि आप ये चीज करो, ठीक है। अब मान लो अगली स्टेज क्या आएगी, आपने आपकी कम्युनिटी मेंबर ने आपको बता दिया कि आपने इस बग पे या इस प्रॉब्लम में आपने काम करना है। आपने काम कैसे शुरू करना है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर आपने सिर्फ कोड ढूंढना शुरू कर देना है, ओके। मैसेज आया, सो मैसेज हम बाद में देखेंगे, पहले ये। तो आपने पहले क्या करना है, सारे को किसी भी चीज का कोड ले लो, आपको थोड़ा सा तो पता लग ही जाएगा कि ये इस पार्ट का कोड है, उसमें आपने कोई गलती करके देखनी है सबसे पहले, ठीक है। चाहे सारा का सारा कोड उड़ा दो, नो प्रॉब्लम, कोड जो है वो नेट पे हमें दोबारा मिल जाएगा। चाहे सारा का सारा कोड उड़ा दो, चाहे कहीं पे भी कॉमा फुल स्टॉप पा दो, आपने सिर्फ ये देखना है कि आपका कोड जो है वो कंपाइल हो रहा है कि नहीं हो रहा, जस्ट कि कोई आउटपुट आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। अगर मान लो आपको एरर आ गया तो आप खुश हो गए उस टाइम, क्योंकि आपने एक स्टेप आगे हो जाएगा, क्योंकि आपको पता लग गया कि आपका कोड वर्क कैसे करता है, आपका कोड कंपाइल कैसे करता है, आपको आउटपुट कैसे मिलेगी, ठीक है। जब ये चीज हो गई तो फिर आपने मेन एग्जैक्ट क्या करना है, अगर आपको किसी इश्यू के कोड के बारे में पता लग रहा है तो ठीक है, 2 या 3 घंटे से ज्यादा इस पे स्पेंड नहीं करना। आपने क्या करना है, अपनी कम्युनिटी मेल में हेल्प मांग लेनी है, तो वहां पे सारे आपकी हेल्प करने को होंगे। तो ये चीज है कि आपने कंट्रीब्यूशन स्टार्ट कैसे करनी है और कब, मतलब कैसे आपने कंट्रीब्यूशन पूरी करनी है। तो इस टॉपिक के रिलेटेड में अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप बताओ अभी। मेरा एक है कि इसमें सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए सबसे बेसिक, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, ऐसे तो होगा नहीं कि जिसको कुछ भी नहीं आता किसी भी लैंग्वेज का वो जीसॉप में अप्लाई करने चला जाएगा, ठीक है। आपको कुछ तो पता होगा, कौन सी लैंग्वेज के बारे में पता है आपको, वेदर इट्स C++, जावा, क्योंकि कॉलेजेस में मोस्टली पहले C कराते हैं, फिर C++ कराते हैं, फिर जावा होती है ना। Side note, just sorry to interrupt. I guess it is fine with everyone if it is going in Hindi or you want us to switch to English. Please let us know in the chat box or keep it both ways. बहुत वैसे ही है। Everyone is getting the points he's saying, right? Yes, sir. Yep. ओके, सो बेसिकली क्या होता है, आपके पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आना बहुत जरूरी है, चाहे वो आपको बिगिनर लेवल पे आती है, चाहे इंटरमीडिएट लेवल पे आती है। एक्सपर्ट तो चलो कोई भी नहीं होता, ठीक है। हम जितना डीप जाएंगे उतनी चीजें हमें न्यू सीखने को मिलेंगी। हाउ मच वी नो अबाउट अ लैंग्वेज। Can we also take the audience question at the end? या मैं पढ़ रही हूँ अभी क्वेश्चंस। अच्छा. Okay, if you want to take them now, then you can take them, or we'll take them at the end and open the Q&A for them. नहीं, साथ जो टॉपिक बता रहे हैं उसके साथ में क्वेश्चन साथ ही में कर लेंगे, तो नहीं तो बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा,
ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, पहली बात, आपको कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि GSOC जो है वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है और स्टूडेंट्स के पास कोई एक्सपीरियंस होता ही नहीं है, ठीक है। दूसरा है अबाउट द लैंग्वेज। लैंग्वेज आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, बाकी का जो है वो आप अपनी पूरी जर्नी में सब कुछ सीख जाओगे, आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको बेसिक का कोड ही नहीं समझ आएगा, या जो हमारी नोड्स होती हैं, लिंक लिस्ट वगैरह होती है ना, ट्रीज वगैरह, अगर आपको ये सारा कुछ बेसिक ही नहीं पता होगा तो आप इतने बड़े कोड में कैसे उस पर काम कर लोगे। तो आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो। Basic you mean by data structures and algorithms, right? मैं भी, बेसिक का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी भी लैंग्वेज में प्लस माइनस का प्रोग्राम बनाना आता हो, ठीक है। बेसिक का मतलब ये नहीं है। बेसिक का मतलब कि आपको डाटा स्ट्रक्चर के बारे में सारा कुछ पता होना चाहिए। Hello. यस। So, like, do you guys have more questions, or can we also like probably I'll also ask a few, then you'll get more idea on it. So if I were to start right now, I can just go search for organizations and apply for it. मतलब मेरे पास GitHub, क्या कह रहे हो आप, बोलो। हाँ, अब बोलो। अब मेरे पास GitHub है, उसमें मैंने कभी भी contributions नहीं किया। And then I can अगर मेरे पास अपने GitHub प्रोफाइल पे कोई भी contributions नहीं है, कोई भी pull request नहीं है, तो then I can apply for organizations or not? Why not? You can apply. अब आप मुझे एक बात बताओ, मान लो आपने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारी कंट्रीब्यूशन की है, ठीक है, मान लेते हैं। तो अगर आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन, मान लो मोजिला को सिलेक्ट किया है, अगर आपको उसी में से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ, आप फेल हो गए, आपको समझ नहीं आया, तो उसमें क्या वो आपकी पास्ट कंट्रीब्यूशंस देखेंगे? वो कभी नहीं देखेंगे। मैं बता रही हूँ, मेरे टाइम में मैंने अपनी जर्नी आउटरीची में स्टार्ट की थी, ठीक है, फिर मैं GSOC में और फिर मैं मेंटर हुई। तो जब मैं आउटरीची में थी ना, तो सिर्फ मेरे गिटअप पे कौन से प्रोग्राम थे, प्लस माइनस के थे, क्योंकि तब मेरी डिग्री की स्टार्टिंग हुई थी, किसी ने वो नहीं देखा। So, like according to that, then what languages and technical stacks would you prefer for someone like to participate in such a crucial thing like GSOC? And up to what extent one should know? वेल अकॉर्डिंग टू मी, अगर ये डिपेंड करता है कि किसका कौन सी चीज में इंटरेस्ट है, ठीक है। अगर किसी का पाइथन में इंटरेस्ट है तो मैं एज अ गाइड करके उसको C++ में नहीं लेके जा सकती। राइट। तो ये इन्होंने देखना है कि इनको फ्रंट एंड में इंटरेस्ट है, इनको बैक एंड में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये इन्होंने देखना है, क्योंकि हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गूगल समर ऑफ कोड में होगी, राइट, ठीक है। And how prior to that event should one start with contributions in order to increase bonding with that organization, to understand their stack and entire stuff? तो उसमें आपने क्या करना है कि पहले मैंने बताया कि आपने ऑर्गेनाइजेशंस देखनी है, ठीक है, कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस पुरानी है। अगर वो मान लो 2 साल भी पुरानी है तो वो तीसरे साल भी अप्लाई करेगी GSOC में, ठीक है। तो अगर उन ऑर्गेनाइजेशंस में आप अभी से काम शुरू कर रहे हो तो ऑब्वियस है कि आपके सिलेक्शन के चार्जेस ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि आपको कंट्रीब्यूशन करने के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा, ठीक है ना। तो इसका कुछ नहीं है, आपने सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन देखनी है, काम करना शुरू कर दो। वेदर आप सिलेक्ट होते हो आप नहीं होते, तो वो आपका रिज्यूमे बहुत आगे तक ले जाएगा जब आपको जॉब लेने की बारी आएगी। ओके, सो लाइक देयर इज नॉट अ स्पेसिफिक टाइमलाइन कि अभी से करो, यू कैन स्टार्ट इट व्हेन दे कैन स्टार्ट फ्रॉम टुडे। जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा टाइम मिलेगा आपको कंट्रीब्यूशंस करने के लिए, और जितनी कंट्रीब्यूशंस करोगे उतने ज्यादा हायर चांसेस होंगे आपके सिलेक्शन के लिए। एंड दैट ब्रिंग्स टू अ पॉइंट कि लॉयल्टी कितनी इंपॉर्टेंट है, कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में जाके कंट्रीब्यूट करना है, 2-3 को प्लग करके कंट्रीब्यूट करना है। Yeah, I had the same question. ऐसा कुछ नहीं है, GSOC खुद कह रहा है कि आप एक से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है।
तो क्या होगा, आप अगर आप 2 ऑर्गेनाइजेशंस पे अप्लाई करोगे, आप 2 कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करोगे, उन 2 ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्ट्रीब्यूशंस करोगे, और प्रपोजल के टाइम पे आपको 2 प्रपोजल बनाने पड़ेंगे। तो ये आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है, आप चाहे 4-5 में कर लो, ऐसा कोई बात नहीं है। क्योंकि लॉयल्टी तब चेक होती है जब मान लो कि मैं सिलेक्ट हुई हूँ लेकिन मैं काम किसी और से करा रही हूँ, ठीक है, तो वो लॉयल्टी नहीं होगी। काम तो मैं खुद कर रही हूँ, चाहे मैं 2-3 कंपनी में करूँ, मेरा हार्डवर्क है। Yes, Aditi will come to that point also. Yeah. So we can go for one or many. It is up to us, right? At the end, कितना भी हम करें, it is up to us and our capability कि कितना हमसे हो रहा है। And एक चीज हम कह देते हैं कि हम 1 से या 2 मतलब 2 ऑर्गेनाइजेशन में कर लेंगे, लेकिन एज अ बिगिनर अगर आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में ही पहली कंट्रीब्यूशन करनी है तो वो ही आपको 3 से 4 महीने मांगेगी। राइट, it is very रिसर्च बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको 8-8 घंटे जो हैं वो देने पड़ेंगे काम को, तब होगा जाकर। So like I'd love to hear more on your organization and your project. What contributions you made under that? ओके, सो पहली बात, मेरी कंट्रीब्यूशन स्टार्ट हुई थी आउटरीच में, ठीक है। आई थिंक आउटरीच का सेशन अगला है, राइट? अगला सेशन आउटरीच के, हाँ। तो मेरी जो जर्नी थी इसमें वो आउटरीच में ही स्टार्ट हुई थी। वो मैं सिलेक्ट हुई थी अंडर हाइको ऑर्गेनाइजेशन में, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम में मेरा प्रोजेक्ट क्या था कि मान लो हमारे पास लाइनेक्स है, हमारे पास विंडोज है, हमारे पास जो इनपुट डिवाइसेस जो होते हैं उनकी प्रेफरेंसेस होती है हर डिवाइस की, माउस की स्पीड कितनी चाहिए या कितने बटन माउस यूज करे, राइट? तो मेरा प्रोजेक्ट था, मैंने वो चीज डेवलप करनी थी हाइको ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। मैंने स्टार्ट कैसे किया था, मेरा पहला कंट्रीब्यूशन कौन सा था कि एक बटन था वहां पे, मैंने बटन को डिसेबल किया मैंने इसमें कुछ भी नहीं था, जस्ट रिसर्च की जरूरत थी, प्री डिफाइंड कोई कीवर्ड था कि हमने डिसेबल लगाना था, एक स्मॉल फंक्शन बनाया, उसमें उसको डिसेबल कर दिया, तो ये मेरी पहली कंट्रीब्यूशन हो गई थी। Okay, and like how many hours फिर उसके बाद you spent on that organization? अगर मैं बात करूँ तो मैं दिन के 8 घंटे लगाती थी, ठीक है, जहाँ पे मेरा होता था 11 से 7 तो मेरा कॉलेज ही होता था, ठीक है। 2 घंटे मैं पहले लगाती थी, बाकी 3 घंटे मैं, मतलब ऐसा होता है कि हमने 40 घंटे एक वीक में पूरे करने होते हैं, ठीक है। 5 घंटे रोज लगाती थी 5 दिन, और वीकेंड्स को 8-8 घंटे। देखिए, इसलिए हमने आपको स्टार्टिंग में कहा वेरी टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग यू आर। हाँ, तो डिपेंड करता है कि आप कैपेबिलिटी में डिपेंड करता है, आप जितना हार्ड वर्क करोगे आप उतना आगे तक जाओगे। Right. And like the crucial part and people have been asking about it is making a proposal, which is the key in this entire process. So like can you present your proposal and talk more on it? That will be helpful for us. मैं सब दिखा दूंगी, अपना प्रपोजल भी अभी मैं दिखाऊंगी, लेकिन पहले मैं ये कहूंगी कि जब आप पूरा जीसॉप में अप्लाई करोगे ना, सबसे पहले आपने प्रपोजल के बारे में नहीं सोचना, ठीक है, क्योंकि प्रपोजल होता है वो एंड वाले दिनों में होता है, वो आप 10 दिन में भी बना लोगे, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी, अपने पहले कंट्रीब्यूशन करना है, ठीक है। प्रपोजल मैं आपको दिखा देती हूँ। Can you show us right now how we will apply and how we can send into an email? How do you manage it? Okay. तो ईमेल भी मैं आपको दिखा दूंगी कि मैंने आउटरीच में सबसे पहली ईमेल कौन सी भेजी थी, और एग्जाम्स एंड असाइनमेंट। तो एग्जाम्स का क्या होता था, मेरा क्राइटेरिया था कि सिर्फ मैं एग्जाम के 1 दिन पहले पढ़ती थी, सिर्फ 1 दिन पहले, ठीक है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल नॉलेज पे बिलीव करती हूँ, मैं ऐसे बुक्स पढ़ने वगैरह पे मैं बिलीव नहीं करती, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या करती थी, ऑर्गेनाइजेशन से मान लो मेरा मंडे को नहीं, मेरा ट्यूसडे को एग्जाम है, तो मैं मंडे की छुट्टी ले लेती थी कि मेरा एग्जाम है, मुझे पढ़ना है, तो वो मुझे छुट्टी दे भी देते थे। और अगर मैं असाइनमेंट्स की बात करूं तो वो तो मैं रात को ही करती थी। हाँ, क्या कह रहे हैं? सर्टिफाइड जीनियस है, मैंने तो बोला ही था ये आप भी बन सकते हो, हार्ड वर्क करो बस, आप भी बन सकते हो।
सब करेंगे इस सेशन के बाद। GSOC 22 के लिए RIIT से काफी एप्लीकेशन। अगर आप में से 1-2 जाने भी सिलेक्ट होते हैं ना तो मेरा सेशन दिया सफल हो जाएगा। तो पिंग जरूर करना मुझे कि हम सिलेक्ट हो गए हैं। We'll be dropping a link also here at the end, so you can connect with her, ask after this session also. Yes. Clarify everything, go ahead for GSOC 20. तो अभी मैं आपको अपना प्रपोजल दिखा देती हूँ। मैं अपने प्रपोजल का लिंक भी शेयर कर देती हूँ अगर आपको चाहिए तो, ठीक है? ओके, सो पहले सब शो हो रही है ना मेरी स्क्रीन आपको? हाँ। तो पहले मेरे प्रोजेक्ट का नाम क्या था, इनपुट प्रेफरेंसेस था, वो लिखा है और मैंने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखी है, ठीक है? अभी ना एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने लिखा है IRC निक, वो होता है इंस्टेंट रिले चैट, ठीक है? तो हर एक कंपनी का एक चैनल बना होता है IRC पे। तो वो होता है कि मान लो अगर कोई बंदा बिजी है, वो ईमेल पे रिप्लाई नहीं कर रहा, तो वो IRC पे जरूर करेगा क्योंकि वो इंस्टेंट चैट है, ठीक है? तो आप देख लेना, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन IRC पे है तो आप उस पे अकाउंट बना के उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज मेलिंग लिस्ट ठीक है। गॉट इट? I hope यहाँ तक सबका पॉइंट्स क्लियर है। If not, chat box is open for all. तो उसके बाद मैंने अपनी ब्रीफ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन लिख दी थी क्योंकि GSOC में मैं अपनी बीटेक के 3rd ईयर में थी, वो लिखा है। तो मुझे क्या क्या आता है वो लैंग्वेजेस लिखी हैं। तो पास्ट का ओपन सोर्स मैंने लिख दिया कि मैं आउटरीच इंटर्न भी थी, ठीक है? उसके बारे में, क्योंकि क्या है, मैंने जो ऑर्गेनाइजेशन आउटरीच में सिलेक्ट की थी मैंने उसी के साथ कंटिन्यू किया था GSOC में। Okay, so I believe that might have given you an upper edge for GSOC. वो क्या था, क्योंकि मैं अपनी कम्युनिटी को जानने लगी थी और मैं GSOC से पहले ही GCI में, जो अभी बंद हो चुका है, वो 18 साल से जो नीचे बच्चे थे उनके लिए ओपन सोर्स था गूगल के, उसमें मैं मेंटर रही थी। तो मैंने वो सब कुछ इसमें लिखा है। अच्छा, ठीक है? तो आपने सबसे पहले अपनी ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे देनी, आपकी बैकग्राउंड जो भी है। तो अगर मान लो आपने किसी भी चीज पे कंट्रीब्यूशन नहीं किया तो आप सिर्फ ये लिख सकते हो कि मैं इस ईयर में हूँ, मैं ये डिग्री यहाँ से कर रहा हूँ, ठीक है? और मैं प्रोफिशिएंट हूँ इस लैंग्वेज में। तो अगर आपने कंट्रीब्यूशन टाइम में कोई कंट्रीब्यूशन किया है तो वो आपने इसमें लिख देना है। गॉट इट? उसके बाद ये था मेरा था पास्ट प्रॉब्लम, ठीक है? तो इसमें आप लिख सकते हो कि आपने जिस प्रोजेक्ट में आपने काम करना है, तो अब हर प्रोजेक्ट में एक प्रॉब्लम होगी जो आपने सॉल्व करनी है या कोई इन्हांसमेंट फीचर होगा, ठीक है? तो ये आपने उसके बारे में सारा एक्सप्लेन करके लिखना है। पहले जो गलती थी, जो आपको प्रोजेक्ट करने के लिए कह रहे हैं, वो आपने एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। I hope everyone is following what she is saying. Yes. हाँ हूँ तो कही जाओ ना, ठीक है? मुझे रुखा सूखा पड़ जाता है बीच में, फिर लोग ऐसे तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी का लाइक समझ नहीं आ रहा। चलो आगे से बोल दो। तो यहाँ पे आपने अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना है, ओके? तो वो चीज डिपेंड करती है, हाँ। तो वो इसके बाद आपने जो कंट्रीब्यूशन किया है, मान लो आपने चाहे एक कॉमा ही ऐड, कॉमा नहीं कहना, मान लो आपने चाहे कोई इनहेंसमेंट फीचर किया या किसी डैशबोर्ड का रंग ही चेंज किया है, ठीक है? उसके बारे में भी आपने यहाँ पे लिखना है कि मैंने अभी तक ये काम करा है, ओके। ठीक है? तो ये क्या था, मैंने क्या किया था, मैंने सारी इनपुट प्रेफरेंसेस जो थी वो आउटरीच के टाइम में बना दी थी। तो अभी मैंने इसमें इनहांसमेंट फीचर्स ऐड करने थे, तो ये मैंने लिख दिया कि मैंने वर्क टिल अभी तक यहाँ ये सब कुछ बनाया है, ठीक है? तो उसके बाद माय कंट्रीब्यूशंस, अभी यहाँ पे आता है जो आप सब पूछते हो कि गिटहब पे पुरानी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ठीक है? इसमें आपने वो कंट्रीब्यूशन का लिंक ही चलेगा जो आपने उनकी ऑर्गेनाइजेशन में की है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहले कितनी की है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या बाद में कितनी की है, उन्होंने सिर्फ अपना देखना है कि हमारे में कितनी की है, ठीक है? तो वहां पे आप अपना लिंक दे दोगे माय कंट्रीब्यूशंस। उसके बाद आती है प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन कि मान लो
आपने प्रोजेक्ट में अभी करना क्या है। ऊपर तो हमने एक प्रॉब्लम दिखा दी कि ये प्रॉब्लम है प्रोजेक्ट में, ये हमने सॉल्व करनी है। तो नीचे आपने एक ब्रीफ में बताना है कि आपने उसमें करना क्या है प्रोजेक्ट में, ठीक है। उसके बारे में पॉइंट बना के लिख देने हैं। फिर आगे डिटेल्ड प्रोजेक्ट, ये था ब्रीफ, हमने सिर्फ पॉइंट बना दिए, शॉर्ट में इंफॉर्मेशन दे दी कि जस्ट हमारे मेंटर को या ऑर्गेनाइजेशन को ओवरव्यू मिल जाए कि हमारा ये काम हमें हुआ मिलेगा 3 महीने में, ठीक है। आपने भी बना दी, तो अब आप ये काम करोगे कैसे, ठीक है। तो उसके बारे में हमने डिटेल्ड प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ लिखना है कि आपने क्या क्या काम कैसे कैसे करना है। अगर आप ऐसे मॉकअप्स बना सकते हो, इसको मॉकअप कहते हैं, ये मैंने ऑनलाइन साइट यूज की थी mockups.com, आप भी यूज कर सकते हो। अगर आपने इल्यूजन मतलब विजुअल की तरह में दिखाना, ये जो चीजें ये प्रोजेक्ट को ज्यादा अट्रैक्टिव बना देती है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा था कि मैं हर एक आइकन बनाऊंगी, हर एक डिवाइस का एक लोगो ऐड करूंगी, ये लिखा ना। तो अब मैं वो कैसे करूंगी, उसका विजुअल कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा कि मैं ऐसे ऐसे आइकन ऐड करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या है, जो मेरा हर एक पॉइंट है उसको मैंने डिस्क्राइब किया है और इसका मैंने विजुअल बना के उनको दिखाया है कि हमारी आउटपुट ऐसी दिखेगी हमें, ठीक है। हाँ, हर एक पॉइंट को मैंने डिस्क्राइब किया है, तो हर एक के बारे में लिखा हुआ है। तो चलो ये तो हो गया प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन। ऐसे जो मेरे मेंटर ने यहाँ पे किया हुआ है कि मुझे ये चीजें चेंज करनी पड़ती हैं, क्योंकि जब हम प्रपोजल बना देते हैं ना, प्रपोजल जब एंडलाइन है डिपॉजिट करने की, उससे 1 वीक पहले आपका प्रपोजल रेडी होना चाहिए, ठीक है। ताकि वो जो प्रपोजल है वो आप अपने मेंटर के साथ और पूरी कम्युनिटी के साथ शेयर कर सको। जब आप शेयर करोगे तो वो आपको बताएंगे कि आपकी प्रपोजल में क्या गलती है, तो आप ताकि आपको टाइम रहते रहते उस गलती को आप ठीक कर लो। जैसे कि मेरा यहाँ पे जॉयस्टिक का है, तो मेरे मेंटर ने यहाँ पे कमेंट किया भी हुआ है कि हमें ये चीज नहीं चाहिए। उसके बाद जो आपके सिलेक्शन का मेन पार्ट है ना, वो है टाइमलाइन। टाइमलाइन में क्या होता है कि आपने एक एक दिन का हिसाब मतलब आपको बताना है उनको कि हम, अगर मान लो आप सिलेक्ट हो गए, ठीक है, आपने 3 महीने एक प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो आपके पास आप ऊपर आपने बता दिया कि ये प्रॉब्लम है, नीचे आपने बता दिया कि हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। अब टाइमलाइन में आपको बताना है कि जो हर पॉइंट है वो कितना टाइम लेगा, ठीक है। तो मान लो जैसे कि सबसे पहले मैंने कम्युनिटी बॉन्डिंग पीरियड से शुरू किया, तो कम्युनिटी बॉन्डिंग पीरियड में मैंने बता दिया कि मैंने मेंटर्स के साथ इंटरेक्ट किया, लाइक 4 मई से 1 जून जो भी हमारा कंट्रीब्यूशन पीरियड है उसमें मैंने क्या क्या किया। मैंने अपनी कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट किया, मैंने अपने मेंटर से बात की, अपने प्रोजेक्ट के बारे में लर्न किया, उसका कोड स्टडी किया। तो जितना मैंने कोड स्टडी किया मैंने उसका एक स्ट्रक्चर बना के यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया जो मैंने कम्युनिटी बॉन्डिंग में कोड जो है वो पढ़ा, तो नीचे इस स्ट्रक्चर को मैंने डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। ये सारा डिस्क्राइब किया हुआ है। तो अब आ गया कि अब मान लो कि मैंने कोई एक कंट्रीब्यूशन आगे की है, कि मान लो मैंने कोई ऑप्शन ही ऐड किया है, ठीक है, उसमें मुझे कितने दिन लगे। मैंने एक कंट्रीब्यूशन किया था, मुझे 12 दिन लगे, मैंने उसके बारे में सारा कुछ लिख दिया। अभी टाइमलाइन पे ऐसा नहीं है कि टाइमलाइन जब आपका प्रोजेक्ट एक्चुअल में स्टार्ट होगा 3 महीने का वहां से ही शुरू करना है, ये आपकी मर्जी, आपने वहां से शुरू करना है या आपने कम्युनिटी बॉन्डिंग पीरियड से शुरू करना है, ठीक है। मेरे मेंटर ने कहा था कि आप कम्युनिटी बॉन्डिंग पीरियड से शुरू करो ताकि वो चीज सारी डिस्क्राइब करे कि आपने इतने दिन इस काम को लगाए हैं, ओके। तो GSOC में क्या होता है, हमारे पास 3 इवैल्यूएशंस होती हैं। इवैल्यूएशंस का मतलब क्या होता है कि आपने, अगर आप फर्स्ट इवैल्यूएशन के पहले जितना काम आपने प्रपोजल में लिखा है, अगर वो उतना आपने कंप्लीट कर दिया तो आपको फर्स्ट पे आ जाएगी, आपकी सम अमाउंट जो है $15,000 में वो आ जाएगा, क्योंकि अभी 15,000 नहीं, अभी $1,500 है, मेरी बारी में $3,000 था, क्योंकि कोरोना की वजह से वेरिएशंस आई हैं स्टाइपेंड में, ठीक है।
तो फर्स्ट इवैल्यूएशन तक अगर आपका सारा काम हुआ होगा तो आपको पे आ जाएगा, ठीक है। अगर माड़ा मतलब एक आधा पॉइंट रह भी जाएगा तभी आ जाएगा, वो इतना इशू नहीं होता। तो अभी आपको बताना है कि सेकंड इवैल्यूएशन के पहले पहले आप क्या काम करोगे और किस पॉइंट को कितना टाइम लगेगा करने के लिए, वो सारी चीज आपने लिखनी है। कई क्या करते हैं, मैंने काफी प्रपोजल जब मैं मेंटर थी मैंने देखा था, वो बच्चे क्या करते हैं कि मान लो जैसे मैंने लिखा है 4 जुलाई टू 10 जुलाई 1 वीक, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कितना एक्सप्लेन किया है कि मैं कौन सा काम कैसे कैसे करूंगी, वो सिर्फ एक लाइन लिख देते हैं कि इसमें हम ये काम करेंगे, बस दैट्स इट। तो वहीं पे क्या होता है, मेंटर्स को कंफ्यूजन होता जाती है कि यार इसने लिख तो दिया लेकिन ये करेगा कैसे, वो तो इसे पता नहीं है। तो वहीं पे क्या होता है कि जो प्रपोजल है वो एक स्टेप पीछे चल जाता है और दूसरा बच्चा आगे आगे आ जाता है, ठीक है। Okay, okay. So it is essential So basically, in the timeline is written. Right. क्या कह रहे हो आप? You go ahead. तो ये वाली सारी मैंने जो है टाइमलाइन बनाई थी अपनी, ठीक है। तो इसमें हमें बेसिकली सिर्फ इतना, सॉरी टू इंटरप्ट, बट इसमें हमें सिर्फ इतना बताना है कि व्हाट यू विल डू एंड हाउ यू विल डू, राइट? यस, क्योंकि ये आपकी मेंटालिटी है कि आपको पहले ही पता होना चाहिए कि आपने प्रोजेक्ट को सॉल्व कैसे करना है। क्योंकि जब आप कॉन्ट्रीब्यूशंस करोगे आपको थोड़ा थोड़ा पता लगने लग जाएगा कि हाँ इस कोड में ये चेंज करना पड़ेगा, इस फाइल में ये चेंजेस होगी, तभी हमारा जो प्रोजेक्ट है वो पूरा हो जाएगा। तभी वो पहले प्री कॉन्ट्रीब्यूशंस कराते हैं ताकि बच्चा 1 या 2 महीने में उसके कोड के साथ फेमिलियर हो जाए और वो 3 मंथ उस प्रोजेक्ट में डिवोट कर सके अपने, ठीक है। ओके ओके, हाँ समझा समझा। हाँ, तो ये मैंने सारी अपनी 3 महीने की बनाई थी। अभी जितना विजुअल्स ऐड करोगे उतना अपना प्रपोजल जो है वो अट्रैक्टिव बनेगा, ठीक है। तो ये था टाइम अवेलेबिलिटी। अब आ गया टाइम अवेलेबिलिटी, मतलब अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आप हफ्ते के 40 घंटे कैसे निकालोगे, ओके। तो ये आपने मैनेज करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेगुलर डेज में मैं लाइक टाइमिंग्स है 8:30 से 4:30 बजे तक, तो इस दिनों में मैं 5 घंटे अवेलेबल होंगी, ठीक है। और वीकेंड्स में फुल डे कर सकती हूँ या 8 घंटे कर सकती हूँ, ठीक है। अगर मेरे फाइनल एग्जाम्स है तो मुझे एक एग्जाम के बीच में 3 या 4 हॉलीडेज हैं, लेकिन मुझे एक दिन पहले एग्जाम के हॉलीडे चाहिए, मैंने वो सारा कुछ इसी में पहले लिख दिया, ठीक है। अगर मैं प्रपोजल शेयर कर दूंगी, अगर आपको यही चीज उठानी है तो आप उठा सकते हो। तो नीचे आ गया कि वाई है, क्योंकि आपने ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों चूज करी, और आपके आपके मतलब आपके बीच ऐसा क्या है जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको सिलेक्ट करे, वाई यू, उसके बारे में आपने लिखना है, ठीक है। तो ये था पूरा प्रपोजल। अभी आप बता दो अगर आप सबको कोई भी प्रॉब्लम है कोई भी, तो आप मुझे बता सकते हो। ओके, सो मेरा एक और क्वेश्चन था, लाइक आपने लिखा कि आई विल बी अवेलेबल 40 आवर्स फॉर अ वीक, सो ये कंपनी की मिनिमम रिक्वायरमेंट ऐसे कुछ रहती है क्या कि आपको इतने टाइम अवेलेबल रहना है? ये होता है, आपको 40 घंटे देने ही देने हैं हफ्ते के। ओके, सो मिनिमम 40 पर वीक ऐसा कंपनी की तरफ से रहता ही है? हाँ ये रहेगा। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने वो घंटे कैसे देने हैं, उनको 40 घंटे देने हैं। अच्छा, ओके। So like coming to the question, जैसे कि you have written the timeline, right? कि इस week में you will do this and in that week you will do that. तो like उसका अंदाजा कितने प्रायर मतलब you got to know कि अच्छा इस week में मेरा इतना ही काम होगा या इतना ही होगा? How deeply did you study for that? What your project, your organization? एक मिनट, ये आप डॉक्यूमेंट खोल के देखना, मेरे मेंटर के कमेंट आपको शो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? हेलो, नहीं, मेंटर कमेंट तो नहीं लिख रहे हैं। बस सिर्फ व्यू का ही आ रहा है ना आपको?
हाँ, कमेंट्स नहीं आ सीख रहे। लो है। no. ओके ठीक है। तो हाँ, अभी आप क्या कह रहे थे कि मुझे कब कैसे पता लगा कि मैं कितने दिन किस चीज पे लगाऊंगी? Yes. हाँ, तो ये चीज मैंने आपको बताई थी कि यही चीज जो है ना, ये हमें कंट्रीब्यूशन पीरियड में पता लग जाती है। जो भी अप्लाई करेगा, जो 1-1.5 महीने से लगातार उसी प्रोजेक्ट पे काम करेगा, उसे पता लग जाएगा कि ये कितना टाइम लेगी। तो मान लो अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन है, तो आपका मेंटर वहां पे होगा। आप अपने मेंटर से पूछ सकते हो कि यार हमने ये चीज करनी है, ये चीज कैसे होगी, और आपके एस्टिमेट से इसको कितने दिन लगेंगे। क्योंकि एक प्रोजेक्ट पे काम सिर्फ आप नहीं करोगे, ठीक है, आपका मेंटर पूरी हेल्प करेगा उसमें। Yes. हाँ, तो आप उसकी भी हेल्प ले सकते हो प्रोजेक्ट बनवा। अभी ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने उससे मैसेज से बात करनी है या आपने उससे वीडियो कॉल से बात करनी है। मेरा ऐसे था, मैं हर सैटरडे क्या करती थी, मेरा मेंटर मुझसे अपडेट मांगता था, तो मैं हर सैटरडे उसे सारा अपडेट देती थी जितना मैंने काम हफ्ते में किया था। और जब इवैल्यूएशन की बारी आती थी, तब एक दिन पहले भी मेरी वीडियो कॉल होती थी जिसमें मैं अपना पूरा टैली करवाती थी कि ये चीज मैंने प्रपोजल में लिखी है और मैंने पूरी की है। So, like you were very strict to the timeline that you wrote in your proposal. That's the main thing according to me. Yeah. लेकिन हाँ, अगर कोई चांस है कि हमें नहीं पता लग रहा, हम बिगिनर है, ठीक है, कि मान लो टाइम लाइन पे हमारा प्रोजेक्ट पूरा नहीं भी हो रहा, तो उसका कोई इश्यू नहीं है। अगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई भी प्रोजेक्ट नहीं किया या आपने सिर्फ आधा ही प्रोजेक्ट किया। अगर आपने 70 to 80% भी प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, तब भी आप GSOC पास कर जाओगे। Okay. You are mute. Girija. My camera is turned off. So I was saying that is the criteria at the end, right? To get acknowledged by GSOC, you have to complete at least 70 to 80% of the work. कोशिश 100% की करनी है, क्योंकि कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो लीनियंट होती हैं, वो पास कर देती हैं, और कुछ नहीं करती। तो ये डिपेंड करता है कि आपका रिलेशन कैसा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। Right. And we have questions in chat box. Priyanka is asking which year students can apply for GSOC. कहाँ पे लिखा है ये क्वेश्चन? The last one. In which year did I applied for GSOC? Yeah. I applied for GSOC in 2020. I think people from first year itself can start applying, right? Yes, I have started preparing for outreach in my first year, and in second year I got selected, and I also got abroad because they invited me. And in the same year I was in mentored in GCI, and then I applied for GSOC, and in 2021 I was mentored in GSOC. Then like question is that only ki how do you manage everything and then academics also? तो मेरा एक फंडा था कि सभी कहते हैं कि हमें नींद इम्पोर्टेंट है, राइट, लेकिन मैं 3-4 सालों से मैं एक भी दिन नहीं हुआ कि मैं 8 घंटे सोई हूँ। मुझे ये था कि मैंने बस अपना हार्ड वर्क करना है, और मैंने सोचा है वो मैंने अचीव करना है, और मैंने किया भी है। Right. डिपेंड्स अपॉन कि आपकी डेडिकेशन कितनी है, आप कितना इंकरेज हो रहे हो किसी से, और आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हो। So like, do you guys have any more questions? You can unmute and ask for directly. तो आपको मैंने ईमेल दिखानी थी जो मैंने आउटरीच में अपने मेंटर को भेजी थी, राइट? मैं ढूंढती हूँ, अगर मुझे मिल जाए तो। क्वेश्चंस तो पूछ लो अगर किसी के पास है, सभी म्यूट हो गए। हाँ सभी हम शांत, एक्चुअली सब क्लियर है अभी तक तो ज़्यादा तक समझ। And what is the difference between GSOC and outreaching? ओके, सो पहला डिफरेंस तो ये है कि आउटरीच में स्टाइपेंड ज्यादा होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू GSOC। तो आउटरीच में आपको ट्रैवल स्टाइपेंड भी मिलता है, जिसमें आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप कोई भी ओपन सोर्स कॉन्फ्रेंस है उसको अटेंड कर सकते हो। तो अगला है कि
स्टाइफंड का ही मेन होता है, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन का होता है। जैसे जीसॉक में ऑर्गेनाइजेशन आती है, वो पार्टिसिपेट करती है, ठीक है, लेकिन जो पे है वो गूगल करती है। आउटरीची में क्या होता है कि आउटरीची सिर्फ एक नाम है, ऑर्गेनाइजेशन उसमें आती है, उसी के थ्रू वो बच्चे को पे करती है। जीसॉक में बस गूगल पैसा देता है बच्चे को, और आउटरीची में खुद ऑर्गेनाइजेशन पैसा इन्वेस्ट करती है बच्चे पर। इतना फर्क है। आउटरीच सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं है, कोई भी उस पर अप्लाई कर सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि अभी ना रूल्स आ गए। मेरे टाइम में इतने रूल्स नहीं थे। अभी नदरन और सदरन हेमिस्फीयर पे लाइक आउटरीच 2 बार होता है साल में। तो जो एक राउंड होता है वो सदरन हेमिस्फीयर के लिए होता है, जो सेकंड होता है वो नदरन के लिए होता है। आई थिंक जो इंडियंस हैं वो नदरन हेमिस्फीयर में आती हैं। तो उसमें क्या था, वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, उसमें कोई भी लाइक बुढ़े से बुढ़ा बंदा भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है अगर उसे कोडिंग आती है तो। Okay, but I guess I've read it. I don't know if they have changed the guidelines now. कि outreach GSOC किया तो you can't do outreach in the same timeline. There was something like that, right? Regarding. लेकिन आउटरीच में जो उन्होंने क्या, आपकी मेन चीज देखनी है, कंट्रीब्यूशन तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन सबसे पहले उन्होंने ये देखना है कि आप 40 घंटे दे सकते हो वीक के कि नहीं दे सकते, आप 42 डेज फ्री हो कि नहीं। अगर आप 41 डेज भी फ्री नहीं हो तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। अच्छा। मेरे टाइम में ऐसा था कि मेरी तब 6 वीक की ट्रेनिंग थी, तो मैंने अपने कोर्स में आउटरीच एज अ ट्रेनिंग शो कर दी थी कि मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग लगवाई है। But the thing is the same only, right? कि I think अगर GSOC किया है तो in the same timeline you cannot go for outreach. अगर आपने जीसॉक किया है तो आप आउटरीच पे अप्लाई भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने आउटरीच किया है तो वो आप जीसॉक पे जा सकते हो, और जीसॉक आप 2 बार भी कर सकते हो, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने करना है कि नहीं करना। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है एक गोल्डन पीरियड आएगा कि जब आउटरीच में इंडियंस अप्लाई कर सकते हैं, आई थिंक नदरन हेमिस्फीयर वाले राउंड पे, तभी जीसॉक होता है। तो दोनों में क्या होता है, दोनों में सेम ऑर्गेनाइजेशन पकड़ लो, दोनों में काम करो, क्योंकि आपको पता है वो आउटरीच में भी है, वो जीसॉक में भी है। प्रपोजल भेजो, 2 प्रपोजल तैयार करो, सेम प्रपोजल, और किसी एक में तो आपकी सिलेक्शन हो ही जाएगी। क्योंकि आउटरीच में क्या आता है, आउटरीच में अगर आपके लाखों बच्चा भी करता है ना, उसके बीच में सिर्फ 40 to 40 बच्चा ही है जो सिलेक्ट होता है। जीसॉक में ऐसा नहीं है, जीसॉक में काफी बच्चे होते हैं क्योंकि वहां पे गूगल पे कर रहा होता है। राइट। एंड गूगल का नाम है तो हाँ, अट्रैक्टिव वैसे ही लगता है। हाँ, मैं आपको मुझे मेरी इंट्रोडक्टरी मेल तो नहीं मिली, लेकिन मैं आपको एक बच्चे की दिखा देती हूँ, तो आप वो देख लो अभी आप। ये इंट्रोडक्शन मेल है, ठीक है। उसने सब्जेक्ट दिया है जीसॉक 2021 इंट्रोडक्शन, आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। तो उसने क्या हाई लिखा है, उसने लिखा है कि मैं इजिप्ट से हूँ और मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, कि मैंने पहले ये कंट्रीब्यूशन की है, अगर आपने की है तो ठीक है, अगर आपने नहीं की है तो छोड़ो। उसके बाद उसने लिखा है कि मैं ओरिजिनली हूँ, कि मैं इंटरेस्टेड हूँ इस प्रोजेक्ट में, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैंने इसको कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अभी मैं इस चीज में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। उसने 2 चीजें बता दी कि पहली प्रायोरिटी राइट नाउ कौन सी है, तो उसने लिख दिया कि मैंने आपका प्रोजेक्ट बिल्ड करके देखा, इंस्टॉल करके देखा और ट्राइड भी करके देखा। तो आगे उन्होंने सारा कुछ बता दिया कि आपको ये चीजें करनी है। तो बेसिकली ये आपकी इंट्रोडक्टरी मेल होगी, आप पढ़ लो एक बार। अब आप और जीसॉक में ऐसा भी होता है, मान लो कि जो जीसॉक ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोजेक्ट आइडिया लिस्ट दी है, आपको उसमें से किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, राइट। लेकिन आप जब आपको इतना पता है कि उनके प्रोजेक्ट में ये चीज सही होने वाली है जो उन्होंने प्रोजेक्ट आइडिया में नहीं दी, तो आप अपना प्रोजेक्ट भी प्रपोज कर सकते हो उनको कि ये प्रोजेक्ट भी हमारा हो सकता है और इस पे मैं काम करना चाहता हूँ, मुझे ये चीज पता है, तब भी आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। डिपेंड नहीं करता कि उनकी आइडिया लिस्ट में से ही आपने प्रोजेक्ट उठाना है। आई होप कि पढ़ ली होगी सबने ये मेल। या आई होप यू हैव रेड इट या फिर एसएस तो ले लिया होगा।
So Tanmay is asking कि he has zero knowledge on coding but he wants to participate in GSOC. So what advice would you give him? अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो मैं कहूँगी आप 2023 में करो, क्योंकि बेसिक सीखते सीखते ही बहुत टाइम लग जाता है. अगर आप बिल्कुल जीरो नॉलेज पे वहां पे जाओगे तो आपसे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा. तन्मय Okay, so वो थोड़ा एक डाउट मेरा भी है कि लाइक मान लो कि मेरे को कोई वेबसाइट मतलब ऐसे कोई पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग में एकदम मेरा ग्रिप नहीं है बट मेरे को फुल स्टैक डेवलपमेंट आता है. सो ऐसे केस में मैं पार्ट ले सकता हूँ बिकॉज मेरे को आइडिया बिल्कुल नहीं कि वो लैंग्वेज कैसे काम करके बट आई नो हाउ टू मेक अ वेबसाइट. वो स्किल्स क्या होते हैं, एक स्किल का प्रायोरिटी लेवल होता है, ठीक है, कि कौन सा स्किल वो आपको, अगर मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो आपसे 3-4 स्किल मांग रही है, अगर आप 2 में प्रोफिशिएंट हो तो नो डाउट आप तीसरा चौथा साथ में सीख जाओगे काम करते करते. ओके लेकिन एक तो होना जरूरी है. ऐसा नहीं, अगर आपके पास एक भी नहीं है ना तो आप छोड़ दो, तो आपसे नहीं होगा. अच्छा ठीक है. Ma'am, when I in know, such like, scenarios. Okay. I pretty much know about Python classes और वो सब चीज के बारे में. So can you suggest a website or a place where I can learn or refine my data structures and algorithm? अगर आपको डाटा स्ट्रक्चर वगैरह करना है तो आप हैकरएंक यूज कर सकते हो, हैकरएर्थ यूज कर सकते हो. पर्सनली मैंने कुछ यूज नहीं किया, मैं ऐसे ही बताऊं, लेकिन आप यूज कर सकते हो अगर आपको अपना डाटा स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करना है. क्योंकि जब आप हैकरएंक हैकरएर्थ पे आई थिंक जब आप स्कोर कर लेते हो ना अच्छा, तो वहां पे जॉब पोस्टिंग भी बहुत अच्छी मिलती है. So like how did you master the language which is selected? I think you worked on C++, right? In high school. I have started like programming. जब हमें +2 के बाद में फ्री टाइम होता है, ठीक है, तो मैंने तब स्टार्ट कर दी थी. तो क्या हुआ था, मैंने फर्स्ट ईयर में भी की थी, लेकिन सेकंड ईयर पे मैंने जो प्रोग्रामिंग असली में प्रोग्रामिंग सीखी है वो मैंने ऑर्गेनाइजेशन में काम करते करते सीखी है. तभी मैं बता रही हूँ कि आपके साथ पास सिर्फ बेसिक होना चाहिए, रादर बाकी का सारा काम आपको काम करते करते पता लग जाएगा. And if someone is like not up to that, कि उसको फिर भी नहीं लग रहा है कि you can crack GSOC, I think he or she can go for outreach, right? Then the first step, starting step. लेकिन अगर मैं ये बात करूं तो आउटरीच में सिलेक्शन बहुत डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू जीसॉक. क्योंकि जीसॉक में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास स्लॉट्स होते हैं, कि मान लो 3-4 स्लॉट्स हैं. इट मींस कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कम से ज्यादा 3 या 4 बच्चे सिलेक्ट कर सकती हैं. गूगल उनको पे कर रहा है, ठीक है. लेकिन आउटरीच में क्या है, आउटरीच में ऑर्गेनाइजेशन ने अपना बजट देखना है. अगर मेरा बजट मान लो है ही सिर्फ $6,000, तो मैं एक ही बच्चे को हायर कर पाऊंगी ना, मैं दो तो नहीं कर सकती. तो यही चक्कर है. जीसॉक में सिलेक्शन इजी है अगर हम आउटरीच की बात करें, लेकिन अगर आउटरीच को साइड करके सिर्फ जीसॉक की सिलेक्शन देखें तो वो भी इजी नहीं है होनी. करना पड़ेगा. I think अभी भी time है. There is lot of time for GSOC 22. So if you still feel कि you are not that great in a particular skill, then you can master it. There is time and go for GSOC 22, right? तो एक बात और, अगर आप अभी बिगिनर हो, ठीक है, कभी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को हाथ मत डालना. फॉर एग्जांपल अगर आप मोजिला पकड़ लो, ठीक है, आप लाइनक्स पकड़ लो, वहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा. तो जितना कंपटीशन होगा उतने लेसर चांसेस होंगे कि आप सिलेक्ट होगे, ठीक है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा बड़ी है. और अभी मैं भी इतनी कैपेबल नहीं हूँ कि मैं उन ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूशन कर सकूं. आप तो फिर बिगिनर हो, ठीक है, तो आपने ऑर्गेनाइजेशन वो लेनी है जो यूनिक होगी, ठीक है, और जो ज्यादा बड़ी नहीं होगी, अगर सीरियस वे में आपको सिलेक्शन चाहिए तो. लेकिन हाँ, अगर आपके पास इतना करेज है, आप अपने पे ट्रस्ट कर रहे हो कि मैं मोजिला या फायरफॉक्स में कर सकता हूँ कंट्रीब्यूट, तो आप डेफिनेटली गो फॉर इट. रोल ऑफ DSA for contribution should we have to first master it? Okay, तो मैं DSA में क्या चीज होती है, DSA में डाटा स्ट्रक्चर लाइक ट्रीज, ग्राफ्स वगैरह सारा कुछ आ जाता है, ठीक है. तो वो सीधा सीधा किसी भी प्रोजेक्ट में यूज नहीं होगा. ओके, अगर मैं आपको कह दूं कि आप एक
ग्राफ बनाओ और उसके ट्री लो और उसके नोड्स बना दो इतने, तो उसमें ट्राइवर्स कर दो हर एक एलिमेंट को। ऐसा कुछ नहीं होगा ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में, ठीक है? वहां पे सब कुछ लॉजिक चलेगा बस आपका, कि कौन सी चीज किसके साथ अटैच है और यहाँ हमने क्या क्या यूज करना है। वो जस्ट डाटा स्ट्रक्चर सिर्फ ये है कि अगर आप बड़े प्रोजेक्ट पे जाओ तो आपको चीजें समझना मुश्किल ना हो, और कुछ नहीं है। So बस बेसिक नॉलेज होना जरूरी है डेटा बेसिक स्ट्रक्चर। नॉलेज आपका जरूरी होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि क्या अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, ये फंक्शन कौन सा है, ये कीवर्ड हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है? और अगर मान लो कि पाइथन में हम लाएं, अगर मैंने सेट करना है, हमारे पास काफी कीवर्ड्स होते हैं, राइट? एक सेट होता है, आई थिंक एक लिमिट वगैरह भी होता है, ऐसे कीवर्ड्स होते हैं। तो अगर उनकी मतलब उनको हमने कैसे यूज करके जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ानी है या घटानी है किसी भी प्रोग्राम की, तो डाटा स्ट्रक्चर सिर्फ वहां पे यूज होगा, अदरवाइज आपका सारा लॉजिक चलेगा। Okay, and Priyanka is asking, is basics of more than one language better than one language at than learning one language at intermediate level? ये मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझ आया इसका। I think she means कि basics, मतलब अगर if you know Python, C, C++ का basic, तो that is good तीनों language का, या फिर आपको एक intermediate knowledge सिर्फ एक ही language का, like C++, एक लैंग्वेज का इंटरमीडिएट लेवल, that you will prefer more. And audience, do you have more questions, or are things pretty clear now exactly about GSOC? Okay, so good afternoon, Didi. I just wanted to ask कि जैसे अभी मैंने +2 में पढ़ी थी C++, एंड उसके बाद अब मेरे पास बेसिक नॉलेज है, लाइक लिंक लिस्ट, स्टैक क्यूज वगैरह सब आते हैं मुझे। तो नाउ आई एम इन माय फर्स्ट ईयर, तो अब मैं क्या चीज करूं टू अप्लाई फॉर दैट, या कैसे मैं कंपनीज में अप्लाई करूं? कंपनीज में अभी मत अप्लाई करो, क्योंकि आप इतने भी प्रोफिशिएंट अभी नहीं हो, ठीक है? तो कंपनी सबसे पहले क्या देखेगी कि आपने डिग्री की है कि नहीं की है। कंपनीज में अभी अप्लाई करना छोड़ो, ठीक है? अगर आपको साथ साथ में कोई फ्रीलांसिंग का काम मिलता है या कोई इंटर्नशिप मिलती है तो वो करो, लेकिन वो भी सिर्फ तब करो अगर वो आपका रेट भर रही है, कम में मत करो। क्योंकि तब क्या होता है, एज अ स्टूडेंट कंपनी जो होती है वो काम ज्यादा लेती है, पे कम करती है, तो अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना है, ठीक है? तो अगर मैं GSOC की बात करूं तो डेफिनेटली आप C++ में कोई एक ऑर्गेनाइजेशन देखो, ठीक है? अगर आपका इस साल भी नहीं होता, नो प्रॉब्लम, कंट्रीब्यूशन कंटिन्यू रखो। अगर वो कंटिन्यू है और आपकी कम्युनिटी के साथ जो बॉन्डिंग है वो भी कंटिन्यूस है, आप कंटिन्यूस से बात करते हो, काम करते हो, तो डेफिनेटली आपका जो है अगले साल पे सिलेक्शन पक्का होगा। हाँ, ओके, चांसेस है लाइक कि इसलिए भी ऑर्गेनाइजेशन कैसे देखूं? आई वांटेड टू आस्क कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे देखूं GSOC के लिए? ऑर्गेनाइजेशन अभी ना क्या है, यहाँ पे ना सर्च वाला ऑप्शन नहीं आ रहा। मैं वैसे GSOC की मैंने एक वीडियो भी बनाई है, उसमें मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया है, मैं अभी यहाँ पे लिंक दे दूंगी उसका भी, ठीक है? तो इन फ्यूचर में भी पहले जो है थोड़े दिन पहले वहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ जाए, अगर आप वहाँ पे C++ लिखोगे ना तो उसके रिलेटेड सारी ऑर्गेनाइजेशंस आपको शो हो जाएंगी। तो ये टाइमलाइन कब होती है? लाइक अप्रैल में अगर जो हमें GSOC के लिए रजिस्टर करना है तो हमें ये ऑर्गेनाइजेशंस कब से देखनी है, या उनके लिए अप्लाई कब कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन? आप चाहे ऑर्गेनाइजेशंस अभी से देखना शुरू कर दो। ओके, सो मतलब उसमें अप्लाई करके हम लोग कम्युनिटी से अभी जुड़ सकते अप्लाई हैं? का क्या है, अप्लाई का सिर्फ ये है कि आप उस पे एक फॉर्म भर दोगे, ठीक है? कि आप GSOC में अप्लाई कर रहे हो, सिर्फ एक फॉर्म है, कुछ नहीं है। और आगे तो आपने कंट्रीब्यूशन करनी है। ओके, तो दीदी आपका कोई कांटेक्ट वगैरह मिल सकता है हमें, ताकि आगे भी अगर जो हम लोग उसमें आपसे आप कस्टमर मुझे मेरी जीमेल पे कर दो, मैं आपको आईडी दे देती हूँ अपनी। You अगर can आप also drop your LinkedIn in the chat.
ये आईडी है, अगर आपको लिंक्डइन पे करना है तो वो लिंक दे देंगी, ठीक है। अगर जीमेल पे करना है तो जीमेल पे मेल कर दो। मैं वैसे ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि मुझे जीमेल पे ही क्वेरीज पूछो, क्योंकि मैं लिंक्डइन इतना नहीं चलाती हूँ। Okay, okay, no problem. Thank you. Good, then we got a hold of you on LinkedIn. और क्वेश्चन हो तो Any more questions to go? So I believe everything is clear, right? Suppose समझा अभी तक whatever she has said and explained in her proposals, right? हाँ ना, चैट बॉक्स में डालो यार, अभी तक तो इतना रुके हो प्लीज। चैट बॉक्स में डाल दो, ऐसा Yes. हाँ यस, गो अहेड। No, I was saying that yeah, all doubts are clear. Okay. So like any parting advice that you would like to give? I believe they will participate in GSOC 22 now, since most of the stuff is cleared. एडवाइस तो यही है कि एक तो एटलीस्ट कंट्रीब्यूशन कर ही देना अगर आपको सिलेक्ट होना है तो। हाँ, तो सेकंड एडवाइस ये है कि अपना प्रपोजल बस अच्छे से बना लेना, क्योंकि एंड पे जो बात होती है वो आपके प्रपोजल में और आपकी कंट्रीब्यूशन पे ही डिपेंड करती है, और किसी चीज पे। हाँ, और एक चीज और है, कभी भी जीसॉक में लाइक कंट्रीब्यूशन पीरियड में या जब आप सिलेक्ट हो गए तब कभी भी सिर्फ अपने मेंटर के साथ बात नहीं करनी। अगर आपको कोई भी इशू आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, वो हमेशा अपने कम्युनिटी मेलिंग लिस्ट में पोस्ट करनी है, क्योंकि वैल्यूएशन का होता है, जो भी सिलेक्शन का होता है, ठीक है, वो सिर्फ एक जना डिसाइड नहीं करता, वो पूरी कम्युनिटी डिसाइड करती है कि हमें ये बच्चा सिलेक्ट करना है कि नहीं करना। तो अगर आपके बारे में पूरी कम्युनिटी को पता होगा, तभी आप उनकी आंखों में आओगे कि इसको सिलेक्ट करना है, अदरवाइज नो। तो ये भी एक मेन पॉइंट है जो आपको अपने दिमाग में रखना है। Bonding with the entire community is important. यस। जाते वक्त सब प्लीज फीडबैक फॉर्म भर देना। We have put the link in the chat box. We are 24, so I need 22 responses in the feedback form. We'll share that with Pritpal also. Yes. Thank you. Then thank you so much for taking time out of your such a busy schedule and interacting with the audience and clearing everything about GSOC.